Hi guys, I'm Stendra and I'm back with the lead code problems of weekly contest 445. So yeah, we will be solving two problems today. Let's deep dive into the first problem. Okay. Yeah. So the first problem is you are given three integers x, y, and z. Okay. So let's write. Okay. Yeah. Remove it. Remove it. Okay. Okay. Hmm. Okay. So we are given three integers x, y, and z. Okay, these are the integers we are given. Integers we are given. Okay, now x is the person. X is the position of P1, person one. Y is the position of second person, and Z is the position of third person. Okay. Okay. So yeah, x uh, is the position of person one. Person one. Y is the position of person 2 and Z is the position of person 3. Okay, ठीक है यहाँ तक ठीक है. Who does not move? Okay, means Z does not move. Okay, X और Y के बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया गया है अभी, so we will not assume anything right now. Yeah, but Z does not move. It is pretty much clear. Okay, so Z does not move. Does not move. Okay. Okay, Z does not move. ठीक है. Now next, both person P1 and P2. Okay, person P1 and P2 move toward person 3 at the same speed. Okay, ठीक है. यहाँ तक ठीक है. Determine which person reaches person 3 first. Okay, return 1 2 0. Okay, ठीक है. समझ गए. समझते हैं. देखो, जो पर्सन 3 है हमारा वो एक पोजीशन पे फिक्स्ड है और पर्सन 1 और पर्सन 2 पर्सन 3 की तरफ चलते हैं. ठीक है. तो वो पूछ रहा है कि लाइक कौन सा पर्सन विच वन बिटवीन पर्सन 1 एंड 2 विल रीच पर्सन 3 विल रीच पर्सन 3 फर्स्ट. ओके. या तो एक बात बताइए, तीन लोग हैं अगर सपोज दैट. ठीक है. सपोज दैट मैं हूं, आप हैं और आपका दोस्त है. ठीक है. और मैं अगर फिक्स्ड एक पोजीशन पे हूं तो आप और आपका दोस्त एक सेम स्पीड से मेरी तरफ आएंगे. तो कौन पहले पहुंचेगा? जो सबसे क्लोज होगा मेरे. राइट. अगर आप सबसे क्लोज होंगे मेरे तो आप सबसे पहले पहुंचेंगे. और अगर आपका दोस्त आपसे ज्यादा क्लोज होगा मेरे तो वो पहले पहुंचेगा. दैट मीन्स कि जिसका डिस्टेंस मेरे से कम होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा. ओके. तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि पर्सन 3 से पर्सन 1 का डिस्टेंस कम है या पर्सन 2 का. जिसका भी कम होगा वो पहले पहुंचेगा. यही हमें फिगर आउट करना है इस क्वेश्चन में. ओके. ठीक है. उसके बाद अगर पर्सन 1 पहले पहुंचता है तो 1 हमें रिटर्न करवा देना है. और अगर पर्सन 2 पहले पहुंचता है तो 2 रिटर्न करवा देना है. एंड इफ दोनों like if both of them reach at the same time then we will return 0. Okay. Okay. इसके लिए तो एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है. एग्जांपल हम देखेंगे बाद में. लेकिन पहले हम समझते हैं कि ठीक है हमें यही फिगर आउट करना है. अगर हम एग्जांपल देखते हैं, सपोज दैट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 4. तो देखिए, x इज इक्वल टू 2 अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. x इज इक्वल टू, what was that? 2 7 4. Okay, x is equal to 2, y is equal to 7 and z is equal to 4. ये आप इसमें से बता दीजिए ना. इसमें से ये बताइए आप कि लाइक कौन पहले पहुंचेगा. which one between x and y will reach the z at first? जिसका डिस्टेंस कम होगा. so how we will be calculating the distance between z and y and z and x? Simple. Just we can assume this position
in a straight line. Suppose that it yeah, suppose that yeah, it's a straight line, okay, and person, okay, just yeah, okay. Suppose that it is x. Suppose that it is x. Wait, okay. Suppose that yeah, okay. Mm, mm. Suppose that it is x, okay, at point 2, ठीक है, and let that it is z at point 4, and let that it is y at point 7. सिंपल। तो अब इन दोनों में से डिफरेंस, इन दोनों इन दोनों का डिस्टेंस z से कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन x एंड z एट y एंड z? सिंपल। just just find out the difference between these two numbers, like difference between distance, ये कह सकते हैं, we can say distance between x and z. What will be? It will be simple x minus z. Remember always, when we are calculating a distance between any two points, then like distance is never, I mean, distance is neither negative nor positive. It's just a magnitude. Like the value of distance is always a magnitude. So it can never be negative. Okay. So we will if suppose that z is greater than x, then this value will be negative. So we will make it positive by applying module, like mod operator. Okay. Yeah. And distance between y and z, what will be? It will be y and y minus z. Simple. Simple. And जो भी इनमें से छोटा होगा, like if x minus z, if x minus z is less than y minus z, that means person 1, that means person 1 will reach the person 3 faster than the person 2. So we will print out, like we will print, simply we will print 1. We will return 1. We can say, we can say, we can say we will return 1. Okay. And if x minus z, suppose that, is greater than y minus z, what does it mean? It means person 2 is closer to the person 3 as compared to person 1. Okay. So it will return 2. And if x minus z is equal to the y minus z, then it will return 0. Okay. So your question is solved completely. So let's see the code quickly. I've already written the code for you so that it will not take so much time. Yeah. So yeah, let's see the code. Simple. We have to find a distance between z and x and y, z and y, like person 3 and person 2, जो कि जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था. See, distance between both uh, both the pairs. Okay. Yeah. So we can see int a is equal to, yeah, we have declared variable a and b for both the distances. So here a and b are the distance between person 1, we can say person 1 p1. Okay. P1, p3, okay, and p2.
P3 respectively. Okay. Okay. Now, since we have got the distance between both the persons, then now we just have to look at these conditions. See, wait. ओके, तो अब हमें क्या देखना है, सिर्फ ये दो कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है, ये तीन, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. ओके, या सो वी विल जस्ट सी इफ a is less than b, return 1. That means if a is less than b, that means person 1 is closer to the person 3 as compared to person 2. Okay, and else if the other condition is b is less than a, that means person 2 is closer to the person 3 as compared to person, and condition 3 is both are at the same distance, then we have to return 0 as per the question. Okay, yeah, so your like question is solved. The comment part of the code is just an elaboration of this line of code. एक्चुअली सी प्लस प्लस में एक होता है एबीएस, जो फंक्शन होता है, ये एक्चुअली आपके नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है. दैट्स व्हाई आई यूज्ड इट. अगर हम इसे यूज नहीं करते तो हमें ये इफ एल्स का एक स्टेटमेंट लगाना पड़ता, हमें हमारा कोड फालतू लेंथी हो जाता. बट लाइक टू इम्प्रूव आवर कोड, to improve the quality of our code, we will use apps function simply. Okay, so we will see the code by running. Yeah, yeah, the code run हो गया है, and now we will submit it. Yeah, see, it's submitted in runtime. Yeah, 100%. मतलब इससे ऑप्टिमाइज्ड कोड तो नहीं हो सकता फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, या सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व. नाउ वी विल लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. ओके, या सी you are given a palindromic string s, okay, and return the, see, first we will understand what is the palindromic string simply. Wait, just remove it. Just remove it completely. Okay. Just a second, guys, just a second. Yeah, so yeah, now we will look at it. Like, what is palindrome? What is, wait, what is, what is a palindrome? Palindrome string. In terms of string, what is the palindrome string? Okay, so like, yeah, we will see what is a palindrome string. The palindrome string is like that. It's like that. Suppose that A B C D C B A. Okay, and A B C C B A. Okay, yeah. We have I have taken two examples to make you understand if the length of the string is odd or even, both, in both cases. Okay, yeah. See, so palindrome string क्या होती है कि जो हमारी फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग होती है, जो हमारी फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग होती है, वो हमारी सेकेंड हाफ स्ट्रिंग के का रिवर्स होती है एक्चुअली में. और अगर लाइक देर आर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देर आर ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग, देन बीच वाला जो द मिडल कैरेक्टर विल बी एट इट्स लाइक फिक्स्ड कंडीशन, वो वहां से हिलेगा भी नहीं. और जो इवन कैरेक्टर्स जब मतलब इवन लेंथ होती है, तो ये सी सिंपली देखियो पैलिंड्रोम क्या होता है. चाहे हम लेफ्ट टू राइट पढ़े स्ट्रिंग को या हम राइट टू लेफ्ट पढ़े, एक्चुअली में वो स्ट्रिंग सेम ही होती है. आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं. लेट्स सी ए बी सी डी सी बी ए. ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड नाउ राइट टू लेफ्ट. देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वी विल राइट इट कि एक्चुअली में जो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है, एक्चुअली में जो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है, वेदर वेदर वी रीड स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट.
और राइट टू लेफ्ट, द स्ट्रिंग विल बी द सेम। तो हमने पैलिंड्रोम समझ लिया, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग दी हुई होगी वो एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगी। दैट मीन्स पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगी, दैट मीन्स जो भी स्ट्रिंग होगी वो चाहे हम लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट पढ़े वो सेम। ठीक है, नाउ लेट्स सी, रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक यहाँ पे और चीज दी हुई है स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक परम्यूटेशन ऑफ इट। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ऐसी ये स्ट्रिंग ए बी सी डी सी बी ए, ये स्ट्रिंग है जैसे हमारी, जो ये हमारी स्ट्रिंग है, इसी का एक परम्यूटेशन होगा। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन होता है हमारा रीअरेंजमेंट। लाइक परम्यूटेशन क्या होता है हमारा? परम्यूटेशन जो हमारा होता है, परम्यूटेशन जो होता है हमारा, इट्स अ रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब जो हमारी स्ट्रिंग दी हुई होती है, जो स्ट्रिंग में हमारे जो कैरेक्टर्स होंगे उन्हीं को रीअरेंज करके, लाइक उन्हीं की पोजीशन चेंज करके हम एक स्ट्रिंग बना रहे होंगे। ठीक है, और वही स्ट्रिंग हमें रिटर्न करनी है, लेकिन उसकी एक और भी कंडीशन है, दैट इट शुड बी स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली। ठीक है, पैलिंड्रोमिक भी होनी चाहिए। देखो, हमें जो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है वो, उसमें हमारे तीन केसेस है, तीन कंडीशन है। लेट्स सी, फर्स्ट string should be first string should be palindromic, palindromic, okay, okay, wait, second, second, second string should be a permutation, a permutation of of given string, of given string, of given string s, okay, okay, and the third one is string, string should be lexicographically smallest, smallest, okay, okay, ठीक है। तीन कंडीशन हमें देखनी है, स्ट्रिंग शुड बी पैलिंड्रोमिक, स्ट्रिंग शुड बी परम्यूटेशन। ठीक है, हमें दो कंडीशंस तो पता है, दो कंडीशन के बारे में हमें पता है। लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड कंडीशन, दैट इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? ओके, सो दिया हुआ है यहाँ पे, अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक इफ इट, ठीक है, ये हम जानते हैं पैलिंड्रोमिक कब होगी, परम्यूटेशन भी हम जानते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर। A string A is lexicographically smaller than a string B. Okay, let that, यहाँ पे दो स्ट्रिंग अगर दी हुई है हमारी, suppose that, okay, let's uh, let's there are, we have a string A is the first string. Okay, suppose that A is something and B is something. हमारे पास अगर दो स्ट्रिंग है, then if, okay, then I should be okay, if in the first position where A and B differ, मतलब suppose that कोई एक स्ट्रिंग होगी हमारी, कोई एक स्ट्रिंग, हम इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, देन इट विल बी, सपोज दैट हम ए को मान लेते हैं, ए को हम मान लेते हैं डी ए डबल सी ए, ओके, ए हम ले लेते हैं, ओह शिट, आई थिंक ओके, जस्ट या, सो लेट्स ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्या था, स्ट्रिंग क्या थी, क्या डी ए, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ओके, सो व्हाट आर क्वेश्चन से कि सपोज दैट यहाँ पे दो हमारे पास स्ट्रिंग है ए एंड बी, एंड इफ इन द फर्स्ट पोजीशन वेयर ए एंड बी डिफर,
ओके, ए एंड बी डिफर, मतलब हम दोनों को सपोज दैट ऐसे कंपेयर करते जाएंगे कि हम लाइक डी को ए से कंपेयर करेंगे, ए को सी से कंपेयर करेंगे। लाइक हम क्या कर रहे होंगे एक्चुअली में हम क्या कर रहे होंगे कि ए आई को बी आई से कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। बी आई को कंपेयर, इनको कंपेयर कर रहे होंगे, इनको क्या कर रहे होंगे, हम कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो जो पहली हमारी पोजीशन आती है जिसमें इनके एलिमेंट्स डिफर हो जाएंगे, सपोज दैट यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स, मतलब पहला इंडेक्स ऐसा होगा जिसमें डी अलग है, ए अलग है, ये दोनों अलग। तो आगे क्या कह रहा है, स्ट्रिंग ए हैज अ लेटर दैट अपीयर्स अर्लियर इन द अल्फाबेट देन द corresponding letter in B. Okay, okay, and if the, ठीक है, ठीक। अल्टीमेटली क्या कह रहा है हम समझते, देखिए सपोज दैट ये दो स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे बी जो है लेक्सिकोग्राफिकली, इन दोनों स्ट्रिंग में लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग कौन सी है हमारी, पी है हमारी स्मॉलर स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला कैरेक्टर ए है वो क्या कहते हैं, नहीं, जो हमारा पहला कैरेक्टर ए है वो डी से छोटा है। और हम देखिए लेक्सिकोग्राफिकली के लिए हम पता है क्या देखते हैं, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। लेक्सिकोग्राफिकली के लिए हम सिर्फ देखते हैं, लेक्सिकोग्राफिकली के लिए हम सिर्फ देखते हैं कि सपोज दैट पहली बात हम ये फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड आउट, वी फाइंड आउट विच पोजीशन, विच पोजीशन हैज द डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। कौन सी पोजीशन में डिफरेंट कैरेक्टर है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो हमारी लाइक आई इज इक्वल फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, we have different elements, okay, we have different elements because ai is equal to d d and bi is equal to ए। तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट, ओके। अब जब हमें डिफरेंट कैरेक्टर मिल गए हैं तो हम सेकंड कंडीशन कौन सी देखते हैं, सेकंड कंडीशन हमें देखते हैं कि लेक्सिकोग्राफिकली मतलब अल्फाबेटिकली, लेक्सिकोग्राफिकली मींस वी कैन से अल्फाबेटिकली, लेक्सिकोग्राफिकली मींस अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो अब हम देखेंगे इन दोनों में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आता है कौन छोटा है। मतलब अगर हम ए और डी में देखते हैं, बिटवीन ए एंड डी, which one, which one is smaller, is smaller? So clear answer is it's A, that is smaller than, that is smaller than B. So basically क्या हो गया, A और A किसका एलिमेंट है, A, A is the element of string A। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A is the, A is lexicographically smaller than, wait, wait, हम इसको शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, वो ज्यादा, ओके। मैं जल्दी एक व्हाइट बोर्ड देखता हूँ, बेटर देन इट एटलीस्ट, ओके। सो स्मॉलर देन स्ट्रिंग बी, ओके, ठीक है, यू गेट इट, यू गेट इट एक्चुअली, ओके। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, मैं इसको, ठीक है, ठीक है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है पूरा, ठीक, ओके, ओके। तो अब हमें करना क्या है, बस अब हमें
अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। देखो हमने अगर एक बार क्वेश्चन लाइक समझ लिया ना, वंस वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज लाइक 80% आर प्रॉब्लम इज सॉल्व। ओके, प्रॉब्लम को समझना ही बड़ी बात होती है, और उसका पैटर्न क्या होता है। अब ये कह क्या रहा है, ठीक है, अब द मेन चैलेंज इज दैट हाउ वी विल फाइंड लाइक सच ए स्ट्रिंग जो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करे, इन तीनों कंडीशन को फॉलो करे कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक भी हो, स्ट्रिंग शुड बी अ परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग एस, ओके, ठीक है, और स्ट्रिंग शुड बी लेक्सिकोग्राफिकली अल्फाबेटिकली। ओके, तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट हम इसी एग्जांपल लेते हैं कि a इज इक्वल टू हमारा, सपोज दैट, ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट, हम इसको यहाँ अलाइन कर देते हैं, इसको यहाँ अलाइन कर देते हैं, तो अब समझने में आसानी होगी, पूरा विजिबल रहेगा एक्चुअली है। ठीक है, ठीक, नाउ वी विल अंडरस्टैंड या फ्रॉम हियर। ओके, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सपोज दैट हमारी यही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मान लो S1 है, हमारी हमारी स्ट्रिंग दी हुई है H इज इक्वल टू DACCAD, ठीक है, और हमारा हम आंसर से फिगर आउट करते हैं कि एक्चुअली हमारा आंसर जो आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है अभी इस वक्त, वो हमारी स्ट्रिंग है ACDDCA, ठीक है। तो एक्चुअली जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या है कि हमारी स्ट्रिंग पहली बात पैलिंड्रोमिक भी होनी चाहिए। अब पैलिंड्रोमिक किस कंडीशन में होगी, मतलब फर्स्ट हमारी, मतलब कि क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग हमारी जो है वो सेकेंड हाफ स्ट्रिंग के का रिवर्स होनी चाहिए। एक्चुअली पैलिंड्रोमिक का यही मतलब होता है, यही ब्रेकआउट। तो जब हम देखेंगे कि DACCAD, ठीक है, हमें हमें बस पता है क्या करना है, और लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर का पता है क्या मतलब है, परम्यूटेशन। देखो परम्यूटेशन का मतलब है कि हम कोई अलग सा नया कैरेक्टर नहीं इंक्लूड कर सकते। जो इसमें सेकंड कंडीशन है कि स्ट्रिंग शुड बी परम्यूटेशन ऑफ इस गिवन स्ट्रिंग एस, दैट मींस वी कैन नॉट ऐड एनी न्यू कैरेक्टर, हमें इन्हीं कैरेक्टर्स को बस रीअरेंज करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर के हम कैसे बना सकते हैं कि हम जो जो भी हमारी फर्स्ट पोजीशन रेफर करे, हमारी जो फर्स्ट पोजीशन हमारी जो जो भी हो जिसमें डिफर करे हमारी एस स्ट्रिंग से, वो हमारी लाइक इसके जो जो भी इसका अल्फाबेट हो उससे लाइक लेक्सिकोग्राफी अल्फाबेटिकली छोटी होनी चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसका जो फर्स्ट हाफ है उसको अलग कर सकते हैं, और उसको हम अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अल्फाबेटिकली देखो, बात ये है कि ये स्ट्रिंग कोई भी हो, सपोज दैट अगर हम DAC को लेते हैं, लेट दैट सपोज दैट सी, 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 इफ वी टेक फर्स्ट हाफ ऑफ स्ट्रिंग DAC, ठीक है, और अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, अगर हम इसको अरेंज कर देते हैं, अगर हम इसको अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सपोज दैट तो ये क्या होगा, ACD, हमारी ये स्ट्रिंग बनेगी अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। अब तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का क्या मतलब है, दैट मीन्स कि इस दैट मीन्स जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मोस्ट में होगा, और हम लेफ्ट मोस्ट से ही ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो पहला एलिमेंट जो डिफर करेगा वो हमारे लेफ्ट मोस्ट में ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम सॉर्ट कर देंगे तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट जो भी मिलेगा वो जो भी डिफर एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट वो इससे अल्फाबेटिकली छोटा ही होगा। तो हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू, तो इसका स्टेप क्या है सॉल्व करने के क्वेश्चन के, तीन स्टेप है कि सी, सी, फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल वी विल सॉर्ट द फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग, फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग, ओके। देन सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड हम क्या करेंगे, वी विल, मान लो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोई एक स्ट्रिंग सपोज दैट ले लेते हैं, ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जस्ट जस्ट गिव मी सेकंड, जस्ट गिव मी, पहले हम एक कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग str, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि वी विल सॉर्ट द फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग एंड स्टोर
इन str, ठीक है, ओके कर लेंगे, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे कि हम इसी स्ट्रिंग, ये जो हमारी सॉर्ट की हुई स्ट्रिंग होगी, सपोज दैट वी विल सॉर्ट द फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग एंड स्टोर इन द str। सपोज दैट लाइक ऐसे करते हैं। वेट, हाँ ठीक है, str में हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमने सपोज दैट जो हमने और जो हमने सपोज दैट जो हमने str में स्टोर किया है वो स्ट्रिंग है हमारी s1। S1 स्ट्रिंग हमने स्टोर किया, मतलब S1 क्या है एक्चुअली में, S1 इज इक्वल टू, जो हमारा S1 है एक्चुअली में, S1 इज इक्वल टू, S1 इज इक्वल टू सॉर्टेड सॉर्टेड फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग, ओके ठीक। सेकंड हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे, S1 को हम S1 को हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पैलिंड्रोमिक बनाना है, हमें हमारी जो भी स्ट्रिंग होगी वो पैलिंड्रोमिक ही होगी। दैट मींस अगर हम फर्स्ट हाफ को, जैसे हम फर्स्ट हाफ को सॉर्ट कर देते हैं, हमारा गोल देखो, हमारा सॉल्यूशन यहीं से मिल गया कि हमें फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग को हमें क्या करता है, सॉर्ट करना है, दैट्स इट। हमारा सॉल्यूशन इसी पे डिपेंड करता है, हमारा सॉल्यूशन सेकंड हाफ पर डिपेंड भी नहीं करता है। बट हमारा सेकंड हाफ में जो हम जो कर रहे हैं, हमें सेकंड हाफ को रिवर्स करना है, मतलब S1 का रिवर्स हमें सेकंड हाफ में लेना है। क्यों? क्योंकि हमें इसको पैलिंड्रोमिक भी बनाना है। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन कह रही है वो ये कह रही है कि हमें इसे पैलिंड्रोमिक भी बनाना है, तो उसके लिए हम सेकंड स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ में ही सॉल्व हो गया। हमारा जो थर्ड, मतलब हमारा वी विल सॉर्ट द फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग, जो हमारा क्वेश्चन था वो फर्स्ट हाफ में सॉल्व हो गया। सेकंड हाफ हम सिर्फ इसलिए करें इसको पैलिंड्रोम बनाने। अच्छा, आप एक बात और ऑब्जर्व करेंगे कि ठीक है, सपोज दैट एलिमेंट अगर 6 है, तो फर्स्ट हाफ हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए, सेकंड हाफ हमारे अदर 3 एलिमेंट्स हो गए, कंप्लीट हो गए। लेट दैट स्ट्रिंग कुछ ऐसी है कि DAC DAC वाई CAD, ठीक है। पैलिंड्रोमिक तो ये भी है, लेकिन अब मान लो इसमें 7 लेटर है। अब हमने हमने क्या किया, DAC को तो अब हमने इसमें क्या किया, अब हमने इसमें, ओके, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें क्या किया, अब अगर हम इसको फॉलो करें तो हमने इसमें क्या किया, तो हमने इसमें क्या किया, DAC को हमने DAC को शॉर्ट करवा दिया, ठीक है, तो हमारा ACD हो गया, ठीक है। और उसको हमने क्या किया, उसको हमने ऐड कर दिया, S1 हमने STR में ऐड कर दिया, ACD हमारा STN में ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या किया हमने, सेकंड स्टेप में हमने वो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि हमारा, ये एक्चुअली देखो, जब हम इसको स्टोर करेंगे तो ये हमारा S1 होगा, ठीक है, ये हमारा S1 होगा, और हम इसको STR में स्टोर कर देंगे, ठीक है, STR में हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम S1 का रिवर्स करेंगे, S1 का हमने रिवर्स किया, S1 का हमने रिवर्स किया, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने क्या किया, तो हमें S1 का रिवर्स करने पे क्या मिलेगा, DCA मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि एज पर द जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, हम STR में इसको भी ऐड कर देंगे, STR में अगर हम इसको STR में ऐड करेंगे, जो हमारा रिवर्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा, STR हमारा एक्चुअली में जो हो जाएगा वो हो जाएगा ACD DCA। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमारा ये वाई किधर गया, वाई किधर गया। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज और अप्लाई करेंगे, जो हमारा यहाँ पे मिसिंग है, एक स्टेप मिसिंग है, हम रिवर्स को ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, रिवर्स को ऐड करने से पहले क्या करेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है कि इफ लेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑड। अब इज ऑड कब कब कंसीडर करेंगे, इज ऑड, सपोज दैट इज ऑड, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा मिडिल एलिमेंट होगा, जो जो भी हमारा मिडिल एलिमेंट होगा उसको भी हम हम एक्चुअली करेंगे क्या, सी एस टी आर में डिपेंड कर देंगे उस मिडिल एलिमेंट। बस यही हमारा सॉल्यूशन, यही हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम अगर देखते हैं, अब हम कोड को देखते हैं डायरेक्टली। आई हैव रिटन द कोड फॉर यू, या सी, हमने क्या किया, हमने फर्स्ट लाइन में क्या किया, फोर्थ लाइन में पहले हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली, ओके, ठीक है। फिर हमने एक स्ट्रिंग STR ले ली,
ठीक है, एक नई स्ट्रिंग ले ली, हमें हमारी अपनी रिटर्न वाली स्ट्रिंग को स्टोर करवानी, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग एस टू, ये जो 6 लाइन का कोड है, स्ट्रिंग एस टी आर एक स्ट्रिंग है, जो हमारी एस टू स्ट्रिंग है, ये एक्चुअली में क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट जो स्ट्रिंग का फर्स्ट हाफ है उसका उसको हम एस टू में स्टोर करवा रहे हैं। एक्चुअली सब एस टी आर करता क्या है, सब एस टी आर ये करेगा क्या, ये पता है क्या करेगा, ये हमारा लाइक ये क्या करेगा कि फर्स्ट फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग को एस टू में स्टोर कर देगा, एस टू में स्टोर कर देगा, एस टू में स्टोर कर देगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉर्ट करना है, हमें एज पर द रूल क्या करना है, पहले हमने स्ट्रिंग डाली, अब हम वी विल सॉर्ट द फर्स्ट हाफ स्ट्रिंग एंड स्टोर इट इन एसटीआर। हम क्या करेंगे, इसको इस स्ट्रिंग को हम पहले सॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने सॉर्ट करके फिर हमने इसको इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग में। फिर हमें क्या करना था, हमारा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर लेंथ ऑड तो मिडिल एलिमेंट भी इसमें हम अपेंड करेंगे। हमने नाइन्थ स्टेप में चेक कर लिया कि देखो, इफ लेंथ इज इफ एल इज ऑड, तो हम क्या कर रहे हैं, मिडिल एलिमेंट को अपेंड कर रहे हैं, मिडिल एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, एस टी आर प्लस मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारा ये था कि जो हमने एस वन मतलब जो हमने ये हमारा जो सॉर्टेड पार्ट था, इसका हमें रिवर्स एक्चुअली कर देना है, ठीक है, इसको हमें रिवर्स कर देना है, ठीक है, ओके, ठीक। हम्म, और फिर हमें उसको भी स्ट्रिंग में ऐड कर देना है। अब हमें यही स्ट्रिंग रिटर्न करवा देनी है, ये देखिएगा, ये हमारा रन हो जाएगा और ये हमारा सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोड और डेप्थ में समझना, मैं देखिए लॉजिक के पीछे जाता हूँ, कोड तो आप कर लेंगे सिंटैक्स समझ के। अगर आपको कोड और भी डेप्थ में समझना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लुक एट इट एंड विल एक्सप्लेन इन मोर डेप्थ। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच।